there. All right, at this point of time, let's also shift our focus to other developments where West Bengal Governor C.V. Ananda Bose has arrived in Malda on the evening of 18th of April, meeting affected families at the relief camp set up for those affected by Murshidabad violence. The governor met with the families at the Parpur relief camp in Malda and stated that the victims have raised the law and order issue in Bengal, while also sharing that hooligans have assaulted and abused them and they were scared to go back home. The governor has also went on to assure that proactive action would be taken as normalcy needs to be restored. This comes after the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee had asked the governor to postpone his visit to the affected areas as the situation was in way of normalizing. The governor, however, pushed ahead with this visit and stated that he would take up the matter with the appropriate authorities. The situation wasn't without pushback as the protests soon broke out outside the Malda relief camp, where the protesters alleged that the West Bengal police did not allow them to meet the governor and as he made his visit to the affected families. All right, viewers, remember Murshidabad continues to be a concerning flashpoint as far as West Bengal is concerned. At this point of time, 3 deaths have been confirmed due to the clashes, and Murshidabad, that continues to be on the boil, remains very crucial as the violence and unrest broke out after there were protests across the states against the Waqf Amendment Act, and that is what led to even furore in the entire state. Renik is joining me live on the broadcast to share more details. Renik, what is the present situation after the governor went to meet on to the affected families? There were of course concerns regarding restoring the law and order. But at the same time, when we talk about Murshidabad, there has been judicial inquiry. SIT was also being formed. What are these committees and these concerned groups of investigation doing at this point of time as far as the probe is concerned into the Murshidabad violence? देखिए, मुर्शिदाबाद का जो हिंसा का घटना है, उस घटना में जो एसआईटी तैयार किया गया है, उस एसआईटी की तरफ से करीब 276 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी इसके साथ इन्वॉल्व था, उसको आइडेंटिफाई पुलिस की तरफ से ऑलरेडी किया गया है और अभी फिलहाल जिन लोगों को, जो लोग फरार है, उन लोगों को ढूंढने का काम एसआईटी की तरफ से किया जा रहा है। जो लोग गिरफ्तार हुआ है, उनको भी पूछताछ एसआईटी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुर्शिदाबाद का हिंसा के बाद पहली बार गवर्नर सीवी आनंद बोस वो विजिट किए। 2 दिन का सफर में वो आए हैं। कल मालदा जिला में जाकर पार्लरपुर हाई स्कूल पर जो लोग घर छोड़ कर आए थे, जो रिफ्यूजीज बन के उस जगह पर कैंप पे रह रहे हैं, उनके साथ मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद उनसे पूछताछ किया कि क्या अभी उन लोगों का क्या डिमांड है, वो राज्यपाल के सामने वो लोग रखे। और जैसे कि राज्यपाल की तरफ से उनको बताया गया कि जो बीएसएफ कैंप का डिमांड उन लोगों की तरफ से रखा जा रहा है, वो बीएसएफ कैंप किया जाएगा और बीएसएफ कैंप तैयार होगा उस एरिया में, धुलियान में बीएसएफ कैंप तैयार करने का कोशिश राज्यपाल करेंगे। तो इस तरीके का वादा भी राज्यपाल की तरफ से किया गया। और आज सुबह राज्यपाल सीवी आनंद बोस जो जगह पर इफेक्टेड हुआ था, यानी मुर्शिदाबाद का धुलियान, सूती और उसके साथ शमशेरगंज, ये तीनों जगह पर ही गवर्नर सीवी आनंद बोस विजिट करेंगे। उनकी तरफ से देखा जाएगा कि कौन से जगह पर हिंसा का घटना भड़का था, हिंसा के बाद अभी क्या स्थिति है, क्या कितना पुलिस प्रोटेक्शन रखा गया है, और इस बारे में पूरा डिसीजन लिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा ये घटना को देखते हुए नेशनल वुमेन्स कमीशन की तरफ से भी दौरा चल रहा है और नेशनल वुमेन्स कमीशन की टीम भी सुबह 9 बजे के आसपास ही धुलियान पहुंचेंगे। धुलियान में जाके जिस जगह पर हिंसा भड़का था उस जगह पर विजिट करेंगे। इसके अलावा एसपी और डीएम के साथ भी मुलाकात करेंगे। एनसीडब्ल्यू का चेयरपर्सन विजय राहतकर, उनकी तरफ से क्या क्या प्रिकॉशन लिया गया है पुलिस की तरफ से, उसका भी जानकारी उनकी तरफ से लिया जाएगा। और उसके अलावा कल जो उन्होंने मालदा विजिट किया था, उसी टाइम पर जो लोग कंप्लेंट किए थे, उनका कंप्लेंट को भी एसपी और डीएम के सामने रखा जाएगा, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। इसके बाद ही एनसीडब्ल्यू का चेयरपर्सन विजय राहतकर के साथ गवर्नर सीवी आनंद बोस का आज शाम को मीटिंग हो सकता है मुर्शिदाबाद का ये वायलेंस को लेकर, ऐसा ही एनसीडब्ल्यू की तरफ से कहा जा रहा है। तो गवर्नर सीवी आनंद बोस के साथ मीटिंग के दौरान भी मुर्शिदाबाद का ये जो हिंसा में जो लोग इफेक्टेड हुआ है, जो परिवार घर छोड़कर बाहर है, उस बारे में भी चर्चा होगा, ऐसा ही एनसीडब्ल्यू की तरफ से कहा जा रहा है। Well, all right, Renik, thank you very much for sharing more details.
Now, viewers, let's shift our focus